హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆగస్ట్ 15 ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా అమృత్ మహోత్సవ్ ట్యాగ్తో దేశంలోని రకరకాల ప్లేసుల్లో రకరకాలుగా ఇండిపెండెన్స్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా విదేశాల్లో ముఖ్యంగా చైనాలోని షాంఘై, బీజింగ్ వంటి సిటీల్లో ఈ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేది గత ఒక నెలగా జరుగుతున్నాయన్నమాట. సో ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం అదేవిధంగా సాయంత్రం ఈ సెలబ్రేషన్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి. వీటిల్లో చైనాలోనే ఉండే అందరూ ఇండియన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అది స్టూడెంట్స్ అనే కానీ, ఎంప్లాయీస్ అనే కానీ, బిజినెస్ పర్సన్స్ అనే కానీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. కోవిడ్ ముందు లెక్కల ప్రకారం 2020లో చైనాలో మన ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు దగ్గర 45,000 మంది ఎంప్లాయీస్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ 23,000 మంది స్టూడెంట్స్ మెడిసిన్ కోసం అదేవిధంగా ఎంఎస్ చేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు. షాంఘైలో ఈ ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేషన్స్ అనేది ఇండియన్ కమ్యూనిటీ మరియు కన్సల్టెంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు కలిసి చాలా గ్రాండ్గా జరుపుతున్నారనమాట. గత ఒక నెలగా ప్రతి శనివారం ఈ యొక్క సెలబ్రేషన్స్ అనేది జరుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరైనా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా వచ్చి విజిట్ చేయొచ్చు. మనం ఈ సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళడానికి ముందే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం మనం ఏ పేమెంట్ కానీ చేయని అవసరం లేదు, అంతా ఫ్రీనే. ఆల్మోస్ట్ మనం ఫంక్షన్ హాల్ లోపలికి వచ్చేసాము. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫంక్షన్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు, ఇండిపెండెన్స్ డే షాంఘైలో ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు చూపిస్తున్న ఈ వీడియోలో. తప్పకుండా చూడండి. तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जाना, तेरे खेतों में लहराना, इतनी सी
where we have some very good literary ladies and gentlemen who would be speaking, who would be reciting some poems on various patriotic people or the feeling of India. We start with a very known lady. She's been in Shanghai for last almost 20 years and has been involved with Indian and international community through various segments like cultural, social and business. Always actively supported for well-being of fellow Indians to the best of her capacity. Being in China, motto of her is to serve nation by exhibiting a high value of citizens. Such a tumultuous time, and the whole community is going through waves of disturbance, and weather god is also not helping us at all as well. So in midst of that, to still have the feeling to communicate for the country and gather here, it's really wonderful. Thank you to Prabhat, Kirish and all the supporting team to do this. Thank you. So I would like to recite the poem by Trilok Singh Thakurela. He is from Hathras and सभी को पता है हाथरस के कवि सबसे प्रसिद्ध है. भारत में क्रांति लाने वाले ही हाथरस के कवि रहे हैं. तो आज ये देश की जो कविता, देश के इसका टाइटल है देश, और देश जो शब्द है वो भाव होता है और धरती जो होती है वो स्थूल होती है. तो देश बोलते से ही हम किसी भी कंट्री में खड़े होंगे, अपना देश अंदर प्रकट हो जाता है. ये है अंतर देश और देश की धरती में. पर धरती के लिए कुछ करने के लिए देश के प्रति जो प्रेम का प्रगाढ़ भाव, वही हमको उसकी तरफ ले जाएगा. ठकुराला जी ने बहुत ही खूबसूरती से इसमें देश एवं धरती दोनों के बारे में लिखा है, और आप सुनिएगा. एंड आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट हिज कृति एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मूव ऑन. थैंक यू. देश, हरित धरती, थिरकती नदियाँ, हवा के मत भरे संदेश, सिर्फ तुम भूखंड की सीमा नहीं हो देश, सिर्फ तुम भूखंड की सीमा नहीं हो देश. भावनाओं, संस्कृति के प्राण हो तुम, अनकही अंतर व्यथा हो. अंतर व्यथा, हर किसी का एक व्यथा भी है और खुशी भी है, इसे अंतर व्यथा कहते हैं. प्रेम, करुणा, त्याग, ममता, गुणों से परिपूर्ण हो तपवेश, सिर्फ तुम भूखंड की सीमा नहीं हो देश. पर्वतों की श्रृंखला तुम्हारी पूर्व दिशा हो, इंद्रधनुष स्वप्न की सुखदायिनी मधुमय निशा हो. गंध, कलरव, खिलखिलाहट, प्यार एवं स्वर्ग सा परिवेश हो. जब भी हम अपने देश के बारे में सोचें, अपने आप को स्वर्ग में प्राप्त करें. यही भावना हमको देश को और उत्थान करने में प्रबल रहेगी. देश के प्रति सिर्फ क्रांति ही काफ़ी नहीं है, आगे बढ़कर हमारी कृपा का धन, मधुरता, मधुहास, साहस और जीवन गति तुम्हें दे देश. सिर्फ तुम भूखंड की सीमा नहीं हो देश, सिर्फ तुम भूखंड की सीमा नहीं हो देश. धन्यवाद. एक आग्रह है कि हर 15 अगस्त पे मैं अपने बच्चों को भी बोलूँगी और खुद को भी, अगली 15 अगस्त तक के लिए हमने क्या अपना देश के लिए असली कंट्रीब्यूशन किया, इसकी रिपोर्ट कार्ड खुद लिया करें. क्योंकि एक है सांस्कृतिक उत्थान और हलचल, एक है हमने अपने बच्चों को भी और हम अपने आप से एक साल में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Let's discuss with our children. Let children probe you. Mom, how can I contribute till 15th August 2023? That's what we should take this as a pledge. Thank you so much. क्या कहे इसके बारे में, यह देश हमारा महान है. क्या कहे इसके बारे में, ये देश हमारा महान है. सोने की चिड़िया कहते हैं इसको, इसमें रहने वालों के दिल सोने के हैं. कहीं भी रहे हम दुनिया में, पर दिल तो हमारा भारतीय है. कहीं भी रहे हम दुनिया में, पर दिल तो हमारा भारतीय है. कितने भी आधुनिक हो जाए हम, पर संस्कार हमेशा हमारे भारतीय है. इस देश ने हमें गांधी जी दिए हैं, इस देश ने हमें मोदी जी दिए हैं.
इस देश ने हमें गांधी जी दिए हैं, इस देश ने हमें मोदी जी दिए हैं। शुक्रगुजार हैं हम भगवान के जो हमने भारत में जन्म लिया है। भारतीयों के लिए कुछ भी असंभव नहीं, भारतीयों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह प्रयास करने वालों का देश है, यह प्रयास करने वालों का देश है। बस इतना कहकर विराम लगाऊंगी, बस इतना कहकर विराम लगाऊंगी। हम इस देश पर गर्व है, तिरंगा जिसकी शान है। यह देश मेरा महान है, यह देश मेरा महान है। आसमान रहे, हरी भरी धरती हो, नीला आसमान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे। त्याग शूर्य वीरता महानता का मंत्र है, मेरा यह देश एक अभिनव गणतंत्र है। शांति अमन चैन रहे, खुशहाली छाए, शांति अमन चैन रहे, खुशहाली छाए, बच्चों को बूढ़ों को सबको हर्षाए। हम सबके चेहरों पर फैली मुस्कान रहे, हम सबके चेहरों पर फैली मुस्कान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे। धन्यवाद। में गहरी दिलचस्पी है। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए वो सम्मानित महसूस करती है। भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए वो एक कविता बोलना चाहेगी जिसका शीर्षक है प्यारे भारत देश। प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बोल रही हूँ और मेरे अध्यापिका जी अगसला हमें बोलते हैं कि हिंदी जिन्हें भाई भाई, इसलिए आज मैं प्यारे भारत देश की कविता बोल चाहती हूँ। प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, 是地着那么大的hin斗嘞，真神真神好哦，你兄给的呗，别来怕了的，别来怕了的。为东西不来打弄的个就好了个，不他们不得怕给人的事情们就这个，我得了不来更加开动他的哈弄的，马弄阿苏爱不来那马弄的，所以个了这个个嘞，别来怕了的，别来怕了的。तेरे बड़ा बड़ा शिखर के नब को भूखे मांग शाले, तेरे वन चेक उठे बवन से हरी ली राते प्याले, राम कृष्ण के लीला में मैं उठे पुत की वाली, काबा से कैलाश लगू मरली कविता कर ली देश, प्याले भाल देश। जबी तबी सन्यासी कृष्ण रंग में डूबे, हम सब एक अनेक रूप में क्या उभरे क्या उबे, सच एशिया की सीमा में रहता खेल नहीं। काले गोले रंग बिरंगे हमें भेद नहीं, श्रम के भाग्य निवेश, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। Thank you Anita ji for such a very good find. Ladies and gentlemen, please give her again a huge round of applause. Radha. Anjali approached me. She said, like, Manisha, there are very few Indians here and you have to do something. I said, okay, I'm there. Even though I had no idea that what I'm going to recite, but I'm here with one poem today. जब भारत जिसे हम माँ कहकर बुलाते हैं, उस सोने की चिड़िया को के पंखों को नोच कर तोड़ डाला गया था और उसे गुलाम बनाकर पिंजरे में डाल दिया गया था। वह अपने टूटे पंखों, घायल जिस्म और लहूलुहान दिल के साथ पिंजरे में बंद, हर रोशनी से दूर, बेजान, निस्पंद, निरीह और अवसाद से जकड़ी हुई थी कि तभी 1857 में एक वीर सपूत मंगल पांडे ने अपनी भारत माँ को पिंजरे से निकालने के लिए विद्रोह किया। बस यही चिंगारी काफ़ी थी उस अंधेरे पिंजरे में रोशनी की किरण बन जाने के लिए।
ये कविता जिसका शीर्षक है ए रात, ये सुमिता अरोड़ा द्वारा लिखित है। शी इज़ माई सिस्टर। और ये भारत की आत्मा के उन्हीं मनोभावों को दर्शाती है। तो आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम। टाइटल इज ए रात। बस इतनी ही। ए रात, तुझसे मुलाकात बस इतनी ही, वो मुट्ठी भर धूप आवाज़ दिए जाती है, वो मुट्ठी भर धूप आवाज़ दिए जाती है। गर्माहट जो चली आई है इसके संग, गर्माहट जो चली आई है इसके संग, कि बेजान मेरे वजूद में अब हरकत हुआ चाहती है। बेबस है वो काली माँ, बेबस है वो काली माँ जो जकड़े थी मेरी रूह को, बेबस है वो काली माँ जो जकड़े थी मेरी रूह को, कि एक कतरा रोशनी दस्तक दिए आती है। हाथों की लकीरों में पसरी वो स्याही, हाथों की लकीरों में पसरी वो स्याही, हो शर्मसार, हो शर्मसार मेरे हौसलों के आंगन से अब अलविदा चाहती है। जिंदगी जो कि रूठी थी मुझसे अब तक, ये मैं भारत की आत्मा की बात कर रही हूँ, तो उन्हीं के मनोभाव हैं कि जिंदगी जो कि रूठी थी मुझसे अब तक, आज फिर ले अंगड़ाई मुझ में जज्ब हुआ चाहती है। ए रात, तुझसे मुलाकात बस इतनी ही, वो मुट्ठी भर धूप आवाज़ दिए जाती है, वो मुट्ठी भर धूप आवाज़ दिए जाती है। अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपके सामने दो कृतियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कृति हमारे भारत के राष्ट्रपति, whatever caste or religion, all live here in unison, with rivers, sweet mountains. It's a land with rivers, sweet fountains. It's a land of high mountains. Its green forests are pretty and a source of prosperity. Let's for it work hard, for its safety be on guard. Jai Hind. मेरी दूसरी कृति जो मैं बोलने जा रहा हूँ, हम सब ने बचपन में स्कूल में पढ़ी है। हमारा असली हिंदी में प्रवेश इस कविता के से ही हुआ था। ये कविता श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रातः हो या रात हो, संग हो या न साथ हो, प्रातः हो या रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए,
मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि से भरा, अन्न भूमि से भरा, वाटी भूमि से भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जय भारत, जय हिंद। जय भारत। संजय जी जरा रुकिए, जरा रुकिए। संजय जी आप भी बढ़े चलो, हमें हमसे और भी ऐसे कविताएं सुनने में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। अनीता जी आपने इनको और बढ़ावा देना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके लिए आप सभी गुणीजनों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी से शुरुआत करती हूँ। आज़ादी के लिए कुछ भी कहें, अपनी भारत माँ याद आती है। उसी भारत माँ के रूप का वर्णन कर रही हूँ। माँ लगती है सबसे सुंदर, माँ लगती है सबसे सुंदर, ये बात है जानी मानी। पहन तिरंगा भारत माँ लागे बड़ी सुहानी। इसका पावन रूप नहीं है कुछ दिन का मेहमान, इसका पावन रूप नहीं है कुछ दिन का मेहमान। निष्पक्ष निर्मल निरपेक्ष चरित्र से है इसकी पहचान। संस्कारों में सत्यता जिसके अंग अंग में बलिदान। ऋषि रूप आचरण है सुंदर कहता जगत महान। योग बना माथे का टीका, योग बना माथे का टीका। फूंके सब में प्राण और वेदों की माला पहने करती तत्व बखान। इसके हैं दो नयन कटीले, इसके हैं दो नयन कटीले। ज्ञान और विज्ञान तीखी नजरों के एक तीर से मंगल पहुंचा यान। आत्मनिर्भरता के कंगन और बढ़ाएं शान। चांद सा मुखड़ा दम के करके नव भारत निर्माण। दुनिया माने लोहा, दुनिया माने लोहा, माँ के अधरों पर मुस्कान। इट्स हर हम्बलनेस, लाइक अल हम्बल लेडी। दुनिया माने लोहा, माँ के अधरों पर मुस्कान। अनूठा है सौंदर्य माँ का, सभी करें गुणगान। हम बसे कहीं भी, हम बसे कहीं भी बसते हैं भारत माँ में प्राण। भारत हम में रचा बसा यूं घट में आसमान। माँ तुझसे हंसती है अपनी, माँ तुझसे हंसती है अपनी। तुम्ही हमारी शान। हम गर्वित हैं भारत माँ, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। धन्यवाद। माँ की बात आती है, देश की बात आती है तो देश की मिट्टी अपनी धरती छूटी थी जब जान पर बनाई थी। आंखों में थी गंगा यमुना, मिट्टी शीश लगाई थी। वह पावन मिट्टी मैं थोड़ी खाकर आई थी और थोड़ी सी बांध पोटली संग अपने ले आई थी, और थोड़ी सी बांध पोटली संग अपने ले आई थी। आप परदेश में वही पोटली निज मंदिर में सजाई। मूर्ति स्थापना हुई तो पोटली स्थापना भी करवाई। सुबह शाम जब मंदिर में ईश्वर को शीश नवाया, उठा पोटली मिट्टी की माथे से उसे लगाया। उठा पोटली मिट्टी की माथे से उसे लगाया। ये दो पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। मिट्टी भी मिट्टी में घुल के। Some urge comes to me that I should also write, so I've tried to write one. I hope you people like it. I'm going to recite a poem, Hindi poem. अब वक्त हमारा है। एक सवेरा ऐसा आया, दिन था 15 अगस्त 1947। अब से 75 साल पहले मिली हमको आज़ादी थी। चारों ओर जोश और उत्साह दिख रहा था। शहीदों का खून रंजो लाया था। पहली बार तिरंगा लाल किले पर था लहराया। आज़ाद भारत में लोगों ने सांस लेना जो शुरू किया। खुशी से झूमने लगे बनकर एक परिवार।
एक स्वर में गूंजने लगी भारत माँ की जय जयकार। नहीं भूल सकते हैं हम वीरों के बलिदानों को, आज़ादी का मशाल लिए उन शूरवीर जवानों को। संघर्ष और आत्मविश्वास का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। स्वतंत्रता सेनानी को गर्व से सलाम किए बिना नहीं रह सकता। जाने कितनों ने अपना खून बहाया होगा, कितने माओं ने अपना लाल को देश पर न्योछावर किए होंगे। उनके निस्वार्थ योगदान का हम हमेशा ऋणी रहेंगे। अनंत काल तक लोग इनके प्रशंसा करते रहेंगे। अब हम पर है यह उत्तरदायित्व, रखे मान उन अमूल्य प्रयासों की। ध्यान रखें कि वक्त अब हमारा है, भारत की गरिमा को और आगे बढ़ाना है। अनेकता में एकता ही जिसका मूल आधार है, आपस में भाईचारा ही जिसका जीने का सार है। हर कठिनाइयों को जो जोश के साथ देकर ठोकर, करें हम अपना देश का नाम रोशन। मिलकर हम एक ऐसा भारत बनाए, खुशियों की लहर हर तरफ लहराए। चढ़े हम सफलता की पायदान एक होकर, सारी दुनिया भी सर उठा कर करे गर्व हम पर। धन्यवाद। So with this, ladies and gentlemen, अरे नहीं आत्मवदेव परानपि पश्यथ, आत्मवदेव परानपि पश्यथ। युद्धं त्यजत, स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत, स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं। मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्रीं। जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते, जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते। जनको देवः सकल दयाळु, जनको देवः सकल दयाळु। धाम्यथ धाथा दयद्वं जनतां, धाम्यथ धाथा दयद्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो। Before we end, the last 4 weeks have been very, exhilarating and also, humbling for us to see how the community has come forward. We were so worried whether we will have people in Shanghai. We know so many performers who are no longer in Shanghai or are outside Shanghai right now. So we were very worried whether we'll be able to pull it off. But everybody came together. We had children and ladies and gents, everybody coming together, putting their effort in making these 4 weeks very, very successful in my opinion. So thank you everyone. And before that, I want to also thank 2 or 3 CIC members who've been, working very, very hard, right? I want to start with the lady, Megha. Please stand up. She's been after every performer, trying to get everyone to agree to come here all the time. She has been the force behind all these performances that you have seen over the last 4 weeks. We have Vivek Gupta, right? Silently doing a lot, constantly working, right? And we have Arun Dairwani. Yeah? He does not want to be seen, but Arun, please stand up for a moment. Yeah. So yeah.
And then of course there is Girish Baddu, right, our Vice President. And he's, I think, the force behind all these cultural activities that have been organized. He's done a wonderful job, and thank you so much. And thank you, all of you. And let's join. With this, why should we stop? Not introducing Prabhat Kaur, who has also been a force for our success. Ladies and gentlemen, please join for dinner, and yes, please do be there on 15th morning for flag hoisting. All the performers, please remember, you will get your certificates on morning 15th August morning, CGSN morning. So the performers who will be there on morning will get the certificates by CG. Otherwise, we will dispatch it to your residency. And evening we have a gala event, which please do join. That is wonderful, as Prabhat has already introduced, that there are exciting performances. People have worked hard, so please do be a